आज के लेक्चर में हम 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ क्यूब रूट मतलब इस रूट की इंडेक्स 3 है और यूनिटी मतलब 1 है। आए अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स होते हैं। लेट करते हैं x बी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन इस तरह इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। अब आप इस क्यूब रूट को फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 की पावर 1/3। अब फ्रैक्शन फॉर्म 1/3 को एलिमिनेट करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सो वी विल गेट x क्यूब इक्वल टू 1 implies that x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए वी विल यूज फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब which is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. So we will have x minus 1 into x square plus x plus 1 equal to 0. अब हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं x minus 1 equal to 0 और x square plus x plus 1 equal to 0. So here x minus 1 equal to 0 implies that x equal to 1. अब हम x square plus x plus 1 equal to 0 को सॉल्व करेंगे। It is quadratic equation in x. So to solve this quadratic equation, we will use quadratic formula x equal to minus b plus minus root b square minus 4ac over 2a. Here a equal to 1, b equal to 1 and c equal to 1. Putting these values, so we will have x equal to minus 1 plus minus root 1 square minus 4 into 1 over 2 into 1. Simplify this term, so we will have x equal to minus 1 plus minus root 1 minus 4 over 2 which is equal to minus 1 plus minus root minus 3 over 2. अब इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं minus 1 plus minus root 3 into root minus 1 over 2 और हमें पता है कि आयोटा इक्वल टू रूट माइनस 1 होता है। So we will get x equal to minus 1 plus minus root 3 into iota over 2. Thus the 3 cube roots of unity are 1 minus 1 plus root 3 iota over 2 and minus 1 minus root 3 iota over 2. Some important note, हमें पता है कि जो नंबर आयोटा को कंटेन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। So here minus 1 plus root 3 iota over 2 and minus 1 minus root 3 iota over 2 are complex cube root of unity or imaginary cube root of unity. Next अब हम सिमिलर मेथड को अप्लाई करके डिफरेंट नंबर्स के क्यूब रूट मालूम करना सीखेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 27। लेट करते हैं x बी या क्यूब रूट ऑफ 27। देन x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 implies that x equal to 27 की पावर 1/3. Taking cube on both side, so we will get x cube equal to 27 implies that x cube minus 27 equal to 0. और 27 को हम 3 की पावर क्यूब भी करके लिख सकते हैं। So we will get x cube minus 3 cube equal to 0. Now here we will use the formula a cube minus b cube equal to a minus b into a square plus ab plus b square. So we will get x minus 3 into x square plus 3x plus 9 equal to 0. अब हम इस फैक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं x minus 3 equal to 0 और x square plus 3x plus 9 equal to 0. So here x minus 3 equal to 0 implies that x equal to 3. And here x square plus 3x plus 9 equal to 0. It is a quadratic equation in x. To solve this quadratic equation, we will use quadratic formula x equal to minus b plus minus root b square minus 4ac over 2a. So here a equal to 1, b equal to 3 and c equal to 9. Substituting these values, so we will get x equal to minus 3 plus minus root 3 square minus 4 into 1 into 9 over 2 into 1 which is equal to x equal to minus 3 plus minus root 9 minus 36 over 2. Simplify these, we will get x equal to minus 3 plus minus root minus 27 over 2. अब इस root minus 27 को इस तरह भी लिख सकते हैं minus 3 plus minus root 27 into root minus 1 over 2. Taking root 27 which is equal to 3 into root 3.
and we also know that iota equal to root minus 1, so we will have x equal to minus 3 plus minus 3 into root 3 iota over 2. अब प्लस और माइनस की वैल्यूज को अलग अलग करके लिख देंगे, सो वी विल गेट x इक्वल टू प्लस 3 इंटू रूट 3 आयोटा ओवर 2 और x इक्वल टू माइनस 3 इंटू रूट 3 आयोटा ओवर 2. टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम हेयर, सो वी विल गेट दिस. और हमें पता है कि -1 प्लस रूट 3 आयोटा ओवर 2 ओमेगा के इक्वल होता है, सो वी विल गेट x इक्वल टू 3 ओमेगा. और हमें यह भी पता है कि -1 माइनस रूट 3 आयोटा ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, सो वी विल गेट x इक्वल टू 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर. हैंस द क्यूब रूट ऑफ 27 आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर. नेक्स्ट अब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर. हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है. फर्स्ट इज ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा ओवर 2 एंड सेकेंड इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 आयोटा ओवर 2. अब अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर करें तो वी विल गेट अदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. मतलब अगर हम ओमेगा का स्क्वायर करें तो वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह अगर हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो वी विल गेट ओमेगा. आए अब हम इसको प्रूफ करना सीखते हैं. फर्स्ट वी विल टेक -1 प्लस रूट 3 आयोटा ओवर 2. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टेकिंग स्क्वायर वी विल गेट दिस -1 प्लस रूट 3 आयोटा ओवर 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 की पावर 2. अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए we will use a plus b whole square formula which is equal to a square plus 2ab plus b square. So we will get -1 square plus root 3 iota square plus 2 into -1 into root 3 iota over 4. Simplify these, so we will have 1 plus 3 iota square minus 2 into root 3 iota over 4. और हमें पता है कि iota square equal to -1 होता है, so we will get 1 plus 3 into -1 minus 2 into root 3 iota over 4 which is equal to 1 minus 3 minus 2 into root 3 iota over 4. After solving this term we will get -2 minus 2 into root 3 iota over 4. Common 2 from here we will get this. Cancel 2 from 4 we will get -1 minus root 3 iota over 2 which is equal to the other complex cube root of unity. Similarly, we will solve -1 minus root 3 iota over 2 square. अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 minus root 3 iota whole square over 2 की पावर 2. Here we will use formula a plus b whole square. So we will get -1 square plus minus root 3 iota square plus 2 into -1 into minus root 3 iota over 4. Simplify this term, we will get 1 plus 3 iota square plus 2 into root 3 iota over 4. Since iota square equal to -1, so we will get 1 plus 3 into -1 plus 2 into root 3 iota over 4. Multiply 3 into -1, we will get 1 minus 3 plus 2 into root 3 iota over 4, which is equal to -2 plus 2 into root 3 iota over 4. Common 2 from here, so we will get this. Cancel 2 from 4, so we will get -1 plus root 3 iota over 2. Hence, each complex cube root of unity is square of the other. Important note, अगर हम ओमेगा लें और फिर इसका स्क्वायर करें so we will get ओमेगा स्क्वायर, और अगर हम ओमेगा स्क्वायर लें और फिर इसका स्क्वायर करें so we will get ओमेगा. Second property is the sum of all the three cube roots of unity is 0. मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम 0 के इक्वल होता है. आए अब हम इसको प्रूफ करते हैं. हमें पता है कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये होती हैं 1 -1 प्लस रूट 3 आयोटा ओवर 2 एंड -1 माइनस रूट 3 आयोटा ओवर 2. अकॉर्डिंग टू गिविंग कंडीशन सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स इक्वल टू 1 प्लस -1 प्लस रूट 3 आयोटा ओवर 2 प्लस -1 माइनस रूट 3 आयोटा ओवर 2. टेकिंग एलसीएम वी विल गेट 2 -1 plus root 3 iota minus 1 minus root 3 iota over 2. Add these terms, we will get 2 minus 2 plus root 3 iota minus root 3 iota over 2. Cancel similar terms,
we will get 0/2 which is equal to 0. यूं इन तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 के इक्वल होता है. थर्ड प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी. मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल होती है. हमें पता है कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये होती हैं 1 -1 + √3 iota/2 and -1 - √3 iota/2. According to given condition, product of all the 3 cube roots equal to 1 into omega square, which is equal to 1 into -1 + √3 iota/2 into -1 - √3 iota/2. अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए we will use the formula a² - b² equal to a + b into a - b. So we will have -1² minus √3 iota² over 4, which is equal to 1 - 3 iota² over 4. Since iota² equal to 1, so we will get 1 + 3 over 4 equal to 4 over 4. Cancel 4, we will get 1. यूं इन तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है. Fourth property is for any n belongs to Z, omega n is equivalent to one of the cube roots of unity. मतलब ये कि n की कोई भी वैल्यू इंटीजर नंबर z से लें तो ओमेगा n इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से किसी एक के इक्वल होगा. और अगर ओमेगा n की एक्सपोनेंट हायर हो तो उसको लोअर एक्सपोनेंट में रिड्यूस करने के लिए वी विल यूज द फैक्ट दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओमेगा 4 की वैल्यू फाइंड करें तो इसके लिए हम ओमेगा 4 को इस तरह ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है विच इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा. इसी तरह से ओमेगा 5 की वैल्यू को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे विच इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. और इसी तरह से ओमेगा 6 को हम ओमेगा क्यूब की पावर 2 से ब्रेक कर देंगे विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1. और ओमेगा 15 की वैल्यूज को हम ओमेगा क्यूब की पावर 5 से ब्रेक कर देंगे, सो वी विल गेट 1. और ओमेगा 27 की वैल्यू को हम ओमेगा क्यूब की पावर 9 से ब्रेक कर देंगे, सो वी विल गेट 1 बिकॉज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. और ओमेगा 11 की वैल्यू को हम ओमेगा 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 की पावर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा 11 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. इसी तरह से ओमेगा -1 को हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा की पावर -3 + 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा -3 इंटू ओमेगा स्क्वायर. और ओमेगा क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 की पावर -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. और ओमेगा -5 को हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरह ओमेगा -12 को हम इस तरह फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूव डेट x³ + y³ इक्वल टू x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y. अब इसको प्रूव करने के लिए वी विल टेक राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y. यहाँ सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके. सो वी विल गेट x + y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y plus omega y into x plus omega square y. Multiply x from this bracket and omega y from this bracket. So we will get x plus y into x square plus omega square xy plus omega xy plus omega cube y square. Since omega cube equal to 1, so we will get x plus y into x square plus, taking common xy from here, we get omega square plus omega into xy equal to 1 into y square. Now we will find the value of omega square plus omega. और हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की सेकंड प्रॉपर्टी से पता है कि तमाम की तमाम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 के इक्वल होता है. मतलब 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that omega plus omega square equal to -1. So we will get x plus y into x square plus -1 into xy plus 1 into y square. Simplify these, we will get x plus y into x square minus xy plus y square, which is equal to x cube minus y cube.
So right hand side equal to left hand side, hence proved. Next example is prove that -1 plus root -3 whole power 4 plus -1 minus root -3 whole power 4 equal to -16. अब इसको प्रूव करने के लिए we will take left hand side which is equal to -1 plus root -3 whole power 4 plus -1 minus root -3 whole power 4. हमें पता है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल होते हैं. सो इन टर्म्स को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. सो वी विल गेट दिस. नाउ हियर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू ओमेगा एंड दिस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4. अब पावर 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी विल गेट 16 omega 4 plus 16 omega 8. Common 16 from here, we will get 16 into omega 4 plus omega 8. अब omega 4 और omega 8 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 16 into omega cube into omega plus omega 6 into omega square. Since omega cube equal to 1 and omega 6 is also equal to 1, so we will have 16 into 1 into omega plus 1 into omega square. Solving this, we will get 16 into omega plus omega square. हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 के इक्वल होता है, मतलब 1 plus omega square equal to 0. Implies that omega plus omega square equal to -1. So substitute here -1, we will get 16 into -1 equal to -16. So left hand side equal to right hand side, hence proved.